Hi guys, so this is the next topic, that is taxes and investment. If you have not seen the previous two lessons, then please do see. उसके बाद आपको ये टॉपिक और क्लियर होगा. इससे पहले हमने बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की थ्योरी डिस्कस की है, जिसमें हमने बोला है कि दो फर्म्स होती हैं, प्रोडक्शन फर्म्स एंड रेंटल फर्म्स. प्रोडक्शन फर्म्स रेंटल फर्म से कैपिटल गुड्स को रेंट पे लेके फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है. तो जो रेंटल फर्म्स होती है एक्चुअली इन्वेस्टमेंट वो करती है कैपिटल गुड्स को परचेज करने के लिए. So, whatever the investment, business fixed investment is done according to neoclassical theory of investment, that is done by the rental firms. Now, therefore, वो किस लेवल पे इन्वेस्ट करेंगी, वो मार्जिनल बेनिफिट, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करता है ऑफ कैपिटल, एंड मतलब आपका रियल बेनिफिट एंड रियल कॉस्ट पे. रियल बेनिफिट हमने डिस्कस किया है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल पे डिपेंड करता है, एंड जो रियल कॉस्ट है वो हमारा price of capital relative to the overall price level, depreciation and interest rate, real interest rate पे डिपेंड करता है. फिर हमने इन्वेस्टमेंट कर्व को डायग्रामेटिकली डिराइव किया था, why is it inversely related to the real interest rate, and we also discussed the reasons for the shift in the investment curve. We discussed that if marginal productivity of capital increases, the investment curve will shift upward or rightward. And if the marginal productivity of capital reduces, then the investment curve will shift either leftward or downward. So all this we have already discussed. In today's class, we will discuss about taxes and investment. इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो रेंटल फर्म्स करती हैं वो चेंज हो सकते हैं एज पर दी चेंजेस इन टैक्सेस. अगर हम किसी एक फर्म से ज्यादा टैक्स लेते हैं तो उसके पास जो फंड बचेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए एंड इन टर्न कैपिटल गुड्स को परचेज करने के लिए वो कम बचेगा. तो टैक्सेस और इन्वेस्टमेंट के बीच में जो रिलेशन है दैट वी विल अंडरस्टैंड इन दिस लेसन. From here you can get questions about that how the corporate income tax affects the investment of the rental firms. What do we mean by investment tax credit? All these questions can come for short note or a lengthy question can come. So we say the tax code can shift the investment function and in turn influence the aggregate demand, because we have already discussed that aggregate demand is equal to C plus I plus G. तो अगर हमारे टैक्सेस चेंज होते हैं वो इन टर्न इन्वेस्टमेंट को चेंज करते हैं और वो हमारा एग्रीगेट डिमांड को चेंज करेगा, जो फाइनली आउटपुट को चेंज करेगा. So we say that the two of the most important provisions of corporate taxation is, first is corporate income tax and second is investment tax credit. Let us first discuss about the corporate income tax. See, corporate income tax हम प्रॉफिट को कैसे डिफाइन करते हैं उस पे डिपेंड करता है कि हम कितना टैक्स दे रहे हैं. Sometimes what the law says and what the firm understands, they are same, but sometimes there can be a difference between जो law बोलता है क्या profit होना चाहिए और जो firm को अपना profit लगता है. So let us first understand the corporate income tax. It is imposed on the corporate profit, that is by the private firms जो वो earn करती हैं, and the effect of corporate income tax on investment depends on how the law defines profit for the purpose of taxation. So first case is when law and the firms, they define the profits in the same manner, that is profit is equal to rental price minus cost of capital. Then even though the firms will be sharing a fraction of their profits with the government, मतलब उनको वो as tax देंगी, it would still be rational for firms to invest अगर उनका rental price greater है cost of capital से. और अगर rental price मतलब जितना उनको price मिल रहा है अपने capital goods को rent पे देके, उसे हम बोलते हैं rental price. अगर ये greater है जितना उनको cost पड़ रहा है उससे, then it is beneficial कि हाँ उनका प्रॉफिट हो रहा है. बट अगर रेंटल प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देन द फर्म्स विल नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट मोर. Second case scenario is, okay, so in this situation a tax on profit measured in this way would not alter the investment incentives. But जो second case हो सकता है कि जिस तरीके से फर्म्स डिफाइन करती हैं प्रॉफिट्स को और लॉ डिफाइन करता है प्रॉफिट्स को, there can be a difference between that.
हो सकता है कि फर्म्स अगर डेप्रिसिएशन लेती हैं तो वो करंट वैल्यू पे करते हैं. एनीवे, लेट्स गो थ्रू दिस, आई विल एक्सप्लेन साइड बाय साइड. सो द डिफरेंस में अराइज बिटवीन फर्म्स डेफिनेशन and law's definition of profits. This may be due to various factors. One is the way that depreciation is treated. So we say while the firms take depreciation as the current value, but this should be at the current value. Okay, at the current value, but the corporate tax laws deduct depreciation using the historical cost. मतलब पिछले टाइम पीरियड में जो कॉस्ट चल रही थी किसी भी गुड की, उस टाइम पीरियड से वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता है लॉ, बट फर्म अभी के प्राइस के बेसिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करती है. सो हिस्टोरिकल कॉस्ट दैट इज बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ कैपिटल व्हेन इट वाज ओरिजिनली परचेज्ड. सो इसकी वजह से डिफरेंस आ जाता है जो प्रॉफिट फर्म्स कैलकुलेट कर रहे हैं अपने लिए और जो प्रॉफिट लॉ कैलकुलेट कर रहा है. Thus, in periods of investment, replacement cost is greater than historical cost. Suppose कि जो प्रीवियस टाइम पीरियड था या ये जो हिस्टोरिकल कॉस्ट थी उसके बेसिस पे जो डेप्रिसिएशन बन रहा है, सपोज दैट इज 100 रुपीज. पर अब इन्फ्लेशन हो गया और क्योंकि फर्म्स करंट वैल्यू पे लेती हैं तो इन्फ्लेशन में इस पे जो हमारी डेप्रिसिएशन का कॉस्ट आ जाएगा, सपोज वो हमारा 1000 रुपीज आ जाएगा. सो इससे तो फर्म्स का प्रॉफिट बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा. सो इन दिस सिनेरियो रिप्लेसमेंट कॉस्ट विल बी ग्रेटर देन हिस्टोरिकल कॉस्ट. And then, so corporate tax tends to understate the cost of depreciation and overstate the profits. And actually, this makes owning capital less attractive. तो तब हमारे ये जो रेंटल फर्म्स हैं ये इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे. However, policymaker they often change the rules governing the corporate income tax in an attempt ताकि वो इन्वेस्टमेंट को ज्यादा से ज्यादा एनकरेज करे. और इस चीज के लिए उन्होंने ये जो डिसइंसेंटिव है कि भाई टैक्स पे करते हैं जिनकी वजह से जो प्रॉफिट शेयर है कॉर्पोरेट्स का फर्म्स का वो रिड्यूस हो जाता है. बट ऐसा एक तरीके से एनकरेज करने के लिए फर्म्स को कि अगर वो टैक्स पे कर रहे हैं तो उनको क्या बेनिफिट हो सकता है, या उस डिसइंसेंटिव को कम करने के लिए उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट का फंडा निकाला है. नाउ इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट एक्चुअली मीन्स दैट दिस इज अ tax provision that reduces a firm's taxes by a certain amount of each dollar spent on capital goods. मतलब गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसी बोल सकता है कि अगर आप 1000 रुपीज से अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करोगे तो हम आपके टैक्सेस को 100 रुपीज से कम कर देंगे. ये गवर्नमेंट उस सिनेरियो में करता है जब इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने की जरूरत होती है ताकि एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज किया जाए. जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को हम इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम इन फर्म्स को बोलते हैं आप जितना इन्वेस्ट करोगे उसमें आपको कुछ कंसेशन मिलेगा उसके बेसिस पे अपने टैक्सेस पे, जिससे कि फर्म्स को एनकरेजमेंट हो कि वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा कैपिटल गुड्स को परचेज करें और रेंट पे लें. Let's go through this again. So a tax provision that reduces a firm's taxes by a certain amount of each dollar spent on capital goods. Thus, in a way, credit reduces the effect purchase price of a unit of capital, that is purchase price is denoted by PK. Thus, we say that the investment tax credit reduces the cost of capital and in turn boosts the investment level. So this was associated with what is the relationship between taxes and investment. I hope you understand this. जितना tax firms देंगी उतना ही उनका profit कम होएगा and in turn investment कम होएगा और investment कम होएगा तो aggregate demand कम होएगा, as a result of which output in the economy will be less. इसको बूस्ट करने के लिए हमने ये बोला है कि अगर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में जिस तरीके से प्रॉफिट कैलकुलेट होता है वो फर्म्स और लॉ के बीच में सेम तरीके से हो रहा है देन देयर इज नो प्रॉब्लम. बट अगर फर्म्स उसको करंट वैल्यू पे कर रही हैं और लॉ उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे कर रहा है तो कुछ डिफरेंस अराइज होता है. और अभी इन्फ्लेशन चल रहा है तो उसकी वजह से जो फर्म्स का प्रॉफिट मार्जिन है वो ज्यादा कम हो जाएगा और टैक्सेस बढ़ेंगे, जिसकी वजह से फर्म्स को अनअट्रैक्टिव लगता है कि वो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें. इसका एक सोल्यूशन है या इसको एक एनकरेजमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ाया जाए
उसको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट कुछ ऐसे रूल्स निकाल सकती है कि आप जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे आपको उसके बेसिस पे कुछ कंसेशन मिलेगा टैक्सेस में। सो इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, with this I think this theory, we are mostly done with this theory. All the best for your preparation, guys, and we will do the next lesson soon. Please take care.